Hello student, in previous lecture we seen the classification of organic compound. The organic compound may be classified into two ways. First one is based on structure and second one is based on functional group. In previous lecture we seen the classification of organic compound based on structure, in which classification the organic compound are divided into two main basic types. First of all, aliphatic or acyclic or open chain compound, and second one is cyclic or closed chain or ring compound. Then cyclic compound further divided into two types: homocyclic or carbocyclic compound, second one is heterocyclic compound. Then both of them individually divided by two parts. Homocyclic compound divided into two parts: alicyclic compound and aromatic compound. Then in which aromatic compound further divided by two parts: benzonides aromatic and non-benzonides aromatic. And heterocyclic compound, in which also divided two parts: heteroalicyclic compound, heteroaromatic compound, and then further heteroaromatic compound divided into two types: benzonides compound and non-benzonides compound. Dear student, today we are going to learn on the topic of classification based on functional group. So what is functional group? We see the definition of functional group. Functional group क्या होता है? An atom or group of atom or single bond, double bond or triple bond whose presence impart a specific properties to organic compound. It means कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से या ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कोई एटम है, ग्रुप ऑफ एटम है, या सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, तो सब एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इम्पार्ट, इट मीन्स की प्रोवाइड करती है. इम्पार्ट इट मीन्स की प्रोवाइड करना. तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी वो प्रोवाइड करते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को. ओके. और हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच गिव ऑल प्रॉपर्टीज टू अ कंपाउंड्स. इट मीन्स की विच डिटरमाइंस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप. ओके. An atom or group of atom in the organic molecule which determines its characteristics chemical properties is called a functional group. तो फंक्शनल ग्रुप का क्लासिफिकेशन है, उस क्लासिफिकेशन पे से हमको पता चलेगा कि कौन सा ग्रुप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को कौन सी प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है. कि जैसे कि OH लगा अल्कोहल. Before classification based on functional group, we see the general hydrocarbons. It means ki alkane, alkenes and alkynes. In which chapter having many organic compound named as alkane, alkyne or alkenes. So first we generally overlook what is alkane, alkene and alkyne. Here alkane shows like this structure, alkene like this structure and alkyne show this structure. alkane के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, alkene के अंदर डबल बॉन्ड होता है और alkyne के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है. कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन. सो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए हर स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन की वैलेंसी 4 मेंटेन की गई है. लुक हियर,
carbon having formation of 4 bond, here carbon having here 2 bonds and here 2 bonds, it means 4 bonds, and here carbon having maintains 4 bond, 1 2 3 and 4 bond, here also 3 and 4 bonds. तो it's having general formula. अल्केन का जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n+2, अल्किन का CnH2n और अल्काइन का CnH2n-1। एक्चुअली हम ये सब पढ़ने वाले हैं जो नेक्स्ट यूनिट है हाइड्रोकार्बन के अंदर, ये सब जो अल्केन, अल्किन और अल्काइंस के इनके स्ट्रक्चर, इनके आईयूपीएसी नेम और ये जो जनरल फार्मूला है सब उसके अंदर हम देखने। लेकिन इस यूनिट के अंदर भी थोड़ा सा हमको नोन होना चाहिए कि अल्केन, अल्किन और अल्काइन क्या होते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अल्केन का एग्जांपल लेते हैं CH4, हम इसको बोलते हैं मीथेन। देन फर्दर अल्किन CH2 डबल बॉन्ड और अल्काइन इट मीन्स की मिथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड। बट एक्चुअली अल्किन इट मीन्स की मिथेन और मिथाइन। हियर लुक अल्केन ANE इसलिए ये अल्केन, हियर लुक ENE it means ki alkene, here look YNE it means ki here alkynes. But actually there are no compound named methene and methine for forming double bond and triple bond compound. At least 2 carbon atom are required. Suppose अल्किन और अल्काइन इट मीन्स कि मिथिन और मिथाइन फॉर्मेशन होना है तो वहाँ पे एटलीस्ट 2 कार्बन चाहिए, बट हियर इट इज ओनली 1 कार्बन। इसलिए ये जो कंपाउंड है मिथिन एंड मिथाइन इज नॉट पॉसिबल, सो देयर इज नो स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड। ओके, देयर इज नो स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं हम इथेन का, और C2H6, इसको ऐसे भी लिखा जाता है CH3, ये हुआ इथेन। इथेन के अंदर CH2 इसको बोलते हैं इथीन, और CH इस मीन्स की इसको बोलते हैं इथाइन। ये एक्चुअली जो भी इथेन का इथीन और इथाइन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है ड्यू टू इट्स जनरल फॉर्मूला। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि यहाँ से यहाँ कितने हाइड्रोजन कम हो रहे हैं और यहाँ से यहाँ कितने हाइड्रोजन कम हो रहे हैं, वो यहाँ इट डिपेंड्स ऑन इट्स जनरल फॉर्मूला। तो ये हुआ जनरली। फिर इथेन के बाद प्रोपेन के बाद ब्यूटेन के बाद पेंटेन, ये सब चलते रहेगा। ओके, ये एक्चुअली इन प्रीवियस ईयर अपने 10th के अंदर ये देखा होगा, ओवरलुक किया होगा कि अल्केन किसको बोलते हैं, अल्किन किसको बोलते हैं और अल्काइन किसको बोलते हैं। देन हियर द वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जो हमको अभी एक फंक्शनल ग्रुप के अंदर लगेगा, वो है अल्किल रेडिकल्स, और इसको हम बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। तो ये जो अल्काइल रेडिकल्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इट इज ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग 1 हाइड्रोजन less than alkanes,
ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग वन हाइड्रोजन लेस देन अल्केन। सो टेक वन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1, हमने अल्केन लिया, ये क्या था, CH4 मीथेन। इसमें से हैविंग वन हाइड्रोजन इज लेस देन अल्केन, जो पैरेंट अल्केन है वो पैरेंट अल्केन में से हमको एक हाइड्रोजन लेस करना है, इसलिए क्या हुआ CH3, इट मीन्स की मिथाइल। तो क्या होता है कि ये जो इन विच इसको बोलते हैं कि हम दे आर डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, दे आर डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। Here ANE replace by YL। ओके, ये जो ANE यहाँ से हमने हटाया और यहाँ पर हमने YL लगाया, इट मीन्स कि मीथेन का मिथाइल हुआ, CH4 का CH3। हियर कार्बन की टेंडेंसी बढ़ जाती है कि वो और एक बॉन्ड फॉर्मेशन करे। ये जो यहाँ पे लाइन लगा, इट मीन्स कि ये यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। ओके, CH3 इट मीन्स की मिथाइल। तो इट इज रिप्रेजेंटेड उसको हम R से, अभी जो हम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप के अंदर देखेंगे, वहाँ पे R जो लगाया इट मीन्स कि उसको हम क्या मिथाइल ग्रुप बोल सकते हैं, CH3 ग्रुप बोल सकते हैं। एंड जनरल फार्मूला, जैसे कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का जनरल फार्मूला था, तो ये जो अल्काइल रेडिकल से या फिर अल्काइल्स ग्रुप से, उसका भी एक जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला इज CnH2n+1। सो नाउ वी स्टार्ट फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप, या फिर हम उसको क्लास ऑफ कंपाउंड भी बोलते हैं। तो फर्स्ट क्लास है अल्केन्स। एंड अल्केन का जो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, इसको ऐसे शो करते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्लास जनरल फार्मूला इज RH। सो एग्जाम्पल इज CH3। इट मीन्स कि R की जगह पर हमने मिथाइल ग्रुप लगाया और वहाँ पे हमको मिला, हम इथेन मिला। एंड सेकंड वन इज अल्कीन। आप ये जो टेक्स्ट बुक्स है, टेक्स्ट बुक भी रेफर्स कर सकते हैं, उसमें भी ये सब जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप दिए हैं। नेक्स्ट अल्कीन, अल्कीन को बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अल्केन को बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड, जहाँ पर सिंगल बॉन्ड हुआ वो कंपाउंड के अंदर, इट मीन्स कि वो अल्केन है और वो सैचुरेटेड होता है। अल्कीन है, अल्कीन के अंदर सपोज डबल बॉन्ड होते हैं, तो डबल बॉन्ड इट मीन्स कि वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है। तो उसका जो स्ट्रक्चर फंक्शनल ग्रुप है C+C, हियर मेंटेन द कार्बन वैलेंसी। ओके, R CH डबल बॉन्ड CHR। ओके, तो यहाँ पे जो R लगे हैं, R इट मीन्स कि यहाँ पर आपका मिथाइल ग्रुप है। ओके, या फिर यहाँ पर हाइड्रोजन भी हो सकता है। R इट मीन्स कि मिथाइल ग्रुप्स और हाइड्रोजन। सो एग्जाम्पल इज C+C H2, इसको बोलते हैं हम इथीन। इथिन भी बोलते हैं या फिर इथिलीन भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज, थर्ड वन इज अल्काइन। इसको भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोला जाता है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो भी कंपाउंड के अंदर दिखाई दे, इट मीन्स कि वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। इसको हम फंक्शनल ग्रुप, ट्रिपल बॉन्ड होता है और इसको हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लास और जनरल फार्मूला इज RC ट्रिपल बॉन्ड C
R. Here CH triple bond CH, it means कि इथाइन, इथाइन, और उसको हम बोलते हैं एसिटिलीन भी उसका नाम है। नेक्स्ट फोर्थ वन इज अल्किल हैलाइड, इसको हैलोअल्कन भी बोलते हैं। द फंक्शनल ग्रुप इज डिनोटेड बाय एक्स, इट मीन्स की हैलाइड, और हियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्लास और जनरल फॉर्मूला इज आर एक्स, आर इट मीन्स की हियर अल्काइल ग्रुप्स, एग्जाम्पल इज CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड, CH3 को हमने क्या बोला प्रीवियस इसमें मिथाइल, ओके अल्काइल मिथाइल ब्रोमाइड। यहाँ पे एक्स इट मीन्स की क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, फ्लोरीन हुआ और आयोडीन, इट मीन्स की जो भी हेलो कंपाउंड है, हेलोजन है, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन और आयोडीन। तो CH3Br इट मीन्स की मिथाइल ब्रोमाइड, CH3 इट मीन्स की मिथाइल आयोडाइड। तो इस तरह से हम इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर अल्किल साइनाइड्स और नाइट्राइड्स। द फंक्शनल ग्रुप इज C ट्रिपल बॉन्ड N। द लाइन हियर शोज, तो यहाँ से हो गए ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएगा, इसलिए हियर लुक R इट मीन्स की मिथाइल ग्रुप और अल्काइल ग्रुप्स। इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज RCN, एग्जाम्पल इज CH3CN मिथाइल साइनाइड और मिथाइल नाइट्राइड्स, ओके मिथाइल साइनाइड। नेक्स्ट 6 नंबर नाइट्रोअल्केन। So functional group is NO2 called as nitro. The general formula is RNO2, R it means की methyl group. So here CH3NO2 or CH3CH2NO2. It is called nitromethane और नाइट्रोइथेन, ओके नाइट्रोमीथेन और नाइट्रोइथेन। तो जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें से बाकी के जो फंक्शनल ग्रुप है उसका जो नेमिंग है वो प्रीफिक्स होता है, और बाकी के जो फंक्शनल ग्रुप है उसका जो नेमिंग होता है सफिक्स। तो वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि नेमिंग अभी कैसे दिया मैंने, नाइट्रोमीथेन या पर नाइट्रोइथेन। तो हमने मिथाइल नाइट्रो क्यों दिया नहीं या फिर इथाइल नाइट्रो क्यों दिया नहीं, तो जनरली जो कॉमन नेम है कॉमन नेम के हिसाब से कभी कभी उसका नेमिंग होता है। 7 नंबर अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप इज OH called as hydroxy-OH, hydroxyl OH। General formula is ROH, example is CH3OH methyl alcohol। Next phenol, it is also write such a manner, but this OH called as phenolic OH because the OH is attached to aromatic ring, okay, called as, जैसे कि सपोज बेंजीन रिंग है, इसको OH लगाया है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं C6H5OH, ओके, और ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस मीन्स की जो एरोमेटिक
रिंग को OH लगा है उसको हम बोलते हैं फेनोलिक OH, कॉल्ड एज फेनॉल। नेक्स्ट 9 नंबर amines. The functional group is NH2. It is also called amino group. General formula is RNH2. The example is R, it means कि alkyl groups, methyl, ethyl, propyl, butyl. Okay, so example is here CH3 NH2, okay, methyl amine, or suppose CH3 CH2 NH2 called as ethyl amine, C2H5 NH2. Next, ether. So ईथर को हम ऐसा लिख सकते हैं या फिर इसको यहाँ पे कार्बन लगा सकते हैं, ओके, कॉल्ड एज ईथर. द जनरल फॉर्मूला इज ROR dash. Here R and R dash, it means here both group are same, both group are different. Example CH3O CH3 called as डाइमिथाइल, दो मिथाइल ग्रुप इसलिए डाइमिथाइल ईथर. और सपोज एग्जाम्पल CH3O C2H5, इट मीन्स कि इथाइल, तो हम इसको बोलेंगे फर्स्ट इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर. So next one is aldehyde. The functional group is C double bond OH. Here we also write down CHO. The general formula is RC double bond OH or RCHO. R, it means ki alkyl groups. Here example is CH3 C double bond OH called as acetaldehyde, और इसको हम इथेनॉल भी बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज केटोन. C डबल बॉन्ड O कॉल्ड एज केटो ग्रुप और ऑक्सो ग्रुप. कोई भी कंपाउंड के अंदर C डबल बॉन्ड O दिखाई दिया, इट मीन्स कि उसको हम ऑक्सो ग्रुप बोलते हैं. और दो रिप्रेजेंटेशन इज लाइक RC R डैश डबल बॉन्ड O. हियर बोथ groups are different और both group are same. और CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन बोलते हैं, या फिर उसको डाइमिथाइल केटोन भी बोलते हैं. ओके, डाइमिथाइल केटोन भी बोलते हैं. सो नेक्स्ट वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड. द फंक्शनल ग्रुप इज C डबल बॉन्ड O OH. कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं उसको, और हम उसको सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं COOH. ओके, कार्बोक्सिलिक ग्रुप. द रिप्रेजेंटेशन RC डबल बॉन्ड OH. R, इट मीन्स कि हियर मिथाइल ग्रुप्स, और हम बोल सकते हैं सिंपली अल्काइल ग्रुप्स. CH3 एग्जाम्पल इज CH3 COOH. एसिटिक एसिड बोलते हैं उसको, या फिर इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं उसको. हियर अनदर एग्जाम्पल इज CH3 CH2 COOH. ओके, उसको हम बोलते हैं प्रोबियोनिक एसिड. सो नेक्स्ट वन इज ईस्टर. द फंक्शनल ग्रुप इज COOR. जनरल फार्मूला RC डबल बॉन्ड OR डैश. बोथ ग्रुप आर सेम और बोथ ग्रुप आर डिफरेंट. एग्जाम्पल हियर CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 called as ethyl acetate. Next one is amide. C डबल बॉन्ड O NH2. इसको खाली हम अमाइन बोलते हैं,
सी डबल बॉन्ड ओ लगाया, अमाइड ग्रुप हो गया, रिप्रेजेंटेड एज आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2. एग्जाम्पल इज CH3 सी डबल बॉन्ड ओ NH2. जो कॉमन नेम बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉमन नेम इथाइल एसीटेट, एसिटामाइड्स. और नेक्स्ट वन इज सल्फोनिक एसिड. फंक्शनल ग्रुप इज SO3H. जनरल फार्मूला इज R SO3H. R इट मीन्स की अल्काइल ग्रुप्स, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है अल्काइल ग्रुप्स, इसलिए आप एग्जाम्पल C2H5 इट मीन्स की ए इथेन सल्फोनिक एसिड. सो नेक्स्ट वन इज असाइल क्लोराइड. फंक्शनल ग्रुप इज COCl and representation of the class is or general formula is RCOCl. R मीन्स की अल्काइल ग्रुप्स, CH3 C डबल बॉन्ड OCl, मिथाइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप्स और एनीवन अल्काइल ग्रुप्स. इसको बोलते हैं, जो कॉमन नेम होता है उसका एसिटिल क्लोराइड. ओके, इसका कॉमन नेम है. नेक्स्ट लास्ट वन इज एसिड अनहाइड्राइड. C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O. यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगेंगे. लुक हियर, जनरल फार्मूला R CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3. एसिटिक अनहाइड्राइड बोलते हैं उसको. सो हियर कंप्लीट द फंक्शनल ग्रुप और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड अपॉन फंक्शनल ग्रुप. तो सो इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, बिकॉज जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे इसका इम्पोर्टेंट हमको पता चलेगा. तो जो भी ये जो कंपाउंड है जिसके जो फंक्शनल ग्रुप है आपको हमेशा याद रखने हैं. अल्किन को कैसा फंक्शनल ग्रुप है, अल्किन को कैसा फंक्शनल ग्रुप है. तो जितने भी अभी हमने आज फंक्शनल ग्रुप देखे उनका जो जनरल फार्मूला है वो हमको हमेशा याद रखने का है, तभी हम जो हमारा केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री हम अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं. सो गुड बाय, टेक केयर.